हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं, आ जाए जनाब। ये दो खेती के औजार खेती बाड़ी के औजार है, मुझे लगता है पुराने दौर के लकड़ी के बने हुए सर। अच्छा, और जो ठीक है, जो है अलग अलग वजन का अंदाजा लगाने के लिए बाल्टी इस्तेमाल करते थे। सही है, क्योंकि उनके पास तराजू नहीं था। तराजू नहीं था, तो बिल्कुल। ये बाल्टियां इस्तेमाल ये करते थे, बाल्टियां लकड़ी के इस्तेमाल- बने हुए सारे। ठीक। हमें यब्बो ठीक है। अब जो है बल्टी जबान में रॉयल रेजिडेंस को कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो किला भी हो सकता है, महल भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों, बेलियो तो मित्रों, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣਗੇ, ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ, ਲਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਘਾਂਚਾ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਪਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਪਲੂ ਫੋਰਟ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈਗੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਆਓ ਇਹ ਫੋਰਟ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਤੋਂ ਉਹ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੁਰਾਣੇ ਓਲਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਲਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਇੰਟਰਸ ਹੈ, ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੰਟਰਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਟਿਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲਈਏ 800 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹ ਫੋਰਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਓ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਟਰਸ ਹੈ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਟੋਟਲੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫੈਦੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅੰਦਰ, ਇੰਟਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰਾਫਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਤੇ ਲੁੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈਗੀ ਆ ਫੋਰਟ ਦੀ। ਤੇ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇੱਧਰ ਗ੍ਰੀਨਰੀ, ਉੱਤੇ ਪਹਾੜ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਹਾੜ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? सब खैर वाफियत है? शुक्रिया भाई, आप मुझे इधर लेके आए हैं। बड़ी खूबसूरत जगह है, प्लेस है। तो भाई की मेहरबानी है। तो इत्थे लैके हुण असी अंदर भाई सानू विजिट कराएगा सारा कुछ। तो है देखो शानदार लुक, तो सारी लुक चेक करो, क्या बात है जी। हाँ, नज़ारे चेक करो, देखो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुसी भी कह देना सुभान अल्लाह, ठीक है। इधरों अंदर जा रहे हैं असी। जी दरवाजे चेक करो, बड़े ही ओल्ड बने हुए हैं, ठीक है। तो इधर ब्यूटी भी तुसी हर पासे चेक करो जनाब। अंदर मजीद इंटर होने पे हैं, सारी ब्यूटी तुहानू दिखाना पिया हैगा। वाह जी वाह, ये बड़ियां इत्थे पुरानियां चीज़ां ने। ਇਹ देखो तलवारां, ਇਹ थोड़ा दसना इन्हां दे बारे च, ये किहड़े दौर दियां ने? अच्छा, जो राजा वगैरह, राजा, हाँ, इस्तेमाल करते। कौन से राजा, कोई एक आधे का नाम? ये यहाँ पे यज्ञो खानदान का राजा होता था। कौन कौन सा राजा खानदान कह सकते हैं, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। यज्ञो? अच्छा ये यहाँ पे अच्छा, ये हिस्ट्री है सारी, ठीक है ना। ये बल्दी रोग की विरसे की नमाइश जो गाह है ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਵਨ US ਐਮਬੈਸੀਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਾਵਨ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦਾ ਹਾਲੇ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਸਕਾਫਤ, ਇੱਕ ਕਲਚਰ, ਇੱਕ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਓਲਡ ਗੰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਓਲਡ ਗੰਨਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ
हैरान हो गया। ओल्ड चीज़ां, बड़ियां पुरानियां चीज़ां और बड़ी कीमती चीज़ां। और मेरा ख्याल है कि असीं ये चीज़ां कदी नहीं देखियां, पुरानियां गन्ना तलवारां सारियां चीज़ां। तो उन्होंने लैन गए हैगे आ, वो जिवें ही आ जाते हैं तो फिर तुहानूं दिखाने हैगे आ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। ये सर आ गए हैं, हमें सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन, पुरानी चीज़ों के, राजा महाराजा सब के बारे में बताएंगे। ये किसका नाम है सर? यब्गो जो है ना, यहाँ की रॉयल फैमिली का नाम है, खानदान का नाम है। अच्छा। डायनेस्टी का नाम है यब्गो। ठीक है। जो है बल्टी ज़बान में रॉयल रेजिडेंस को कहते हैं। अच्छा। तो वो किला भी हो सकता है, महल भी हो सकता है। तो इसका नाम है घर। तो बिल्डिंग का नाम, इस पैलेस का नाम है यब्गो घर, मतलब यब्गाओं पे रहने की जगह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं। ये बनाया है सर 1840 में। 1840 में। 1840 में राजा दौलत अली खान नाम था, उन्होंने बनाया है। ये जो थी मेन एंट्रेंस, यहाँ पे रॉयल जो सिपाही होते थे सारे अपनी बंदूकों के साथ, तलवारों के साथ यहाँ पे बैठते थे। अच्छा, ये तलवारें और बंदूकें उनकी ही यहाँ रखी अच्छा, हुई है। ठीक है। ये जो महल है ये 2005 में जी। रॉयल फैमिली के जो डिसेंडेंट्स थे, ठीक उन्होंने है। आगा खान फाउंडेशन को ये डोनेट किया है। ठीक फिर है। उन्होंने इसकी रेनोवेशन करके यहाँ पे सरीना के लिए रूम्स बनाए और म्यूजियम बनाया। अच्छा, बेसिकली ये सरीना है। अभी सरीना होटल है। अभी सरीना होटल है और फोर्ट भी है। फोर्ट भी है। दोनों। ठीक तो है। 21 कमरे हैं, जिनमें से 6 जो है ना होटल के, वो जी। महल के अंदर है, ऊपर मंजिलों। ऊपर मंजिलों में। तो जो राजा रानी के कमरे होते थे, उनको एक होटल कमरा बनाया हुआ है। ठीक, सही है। आगे चलते हैं जनाब। इधर आ जाए जनाब, आ जाए। तो सर बताता है, ये तो यहाँ पे हाँ जी, हाँ जी। काफी छोटे हैं। कोई बात नहीं, आ जाए तो जनाब। ये 2 वजहें होती हैं दरवाजों को छोटे रखने का। ठीक है। एक तो सर्दी की वजह से, अच्छा, सर्दी की वजह से। तो ये छतें, दरवाजे, कमरे छोटे रखे जाते हैं ताकि गर्म रहे। अच्छा, दूसरा होता है दिफा के लिए। ठीक है, दिफा के लिए। हमले की सूरत में दुश्मन एक साथ अंदर ना घुस सके, हाँ, एक एक कर आए, सर झुका कर आएंगे ना, तो सही है। अंदर जो बैठा हुआ वो न मार सके। ठीक है। तो इसलिए दरवाजे छोटे रखे जाते अच्छा, हैं। ये खेती बाड़ी के औजार, खेती-बाड़ी के औजार है, मुझे लगता है पुराने दौर के। लकड़ी के बने हुए सर। अच्छा। और जो उस जमाने में है, जो राजा थे, वो लोगों से लगान लेते थे। लगान तो लेते वो थे। अनाज होते थे, अनाज तो वो होता है। लगान तोलने के लिए उनके पास वजन नहीं थे, तो ठीक ये है। बाल्टियां इस्तेमाल करते थे। अच्छा, तो ये बाल्टियां थी। जी। ये काइंडली बताएंगे ये अलग अलग साइज का, ठीक है। जो है अलग अलग वजन का अंदाजा लगाने के लिए बाल्टी इस्तेमाल करते थे। सही है। क्योंकि उनके पास तराजू नहीं था। तराजू नहीं था, तो बिल्कुल। ये बाल्टियां इस्तेमाल ये करते थे, बाल्टियां लकड़ी के इस्तेमाल। बने हुए सारे। ठीक है। ये तकरीबन ये थोड़ा सा बता सकते हैं कि आज के दौर में ये इनमें कितना केजी के लाइक हिसाब 5 किलोग्राम, 3, 1 इस तरह से, इस हिसाब के अलग अलग साइज के हैं। तो ओके, परफेक्ट ओके। नहीं है, लेकिन परफेक्ट उस नहीं। जमाने का एक स्केल था ये। स्केल था। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो है इनके नाम थोड़े बहुत पुराने जमाने के लिहाज से याद हैं? बल्ती लैंग्वेज में। हाँ, बल्ती लैंग्वेज में बता दें, या महाराजा जो थे उनके हिसाब से। वैसे हम तो पंजाब में इसको वो तरंगली कहते हैं। ठीक है ना? इसको हम बोलते हैं खचे, बोलते हैं खचे। खचे? जी। अच्छा, इसको ये है खचे, ये ब्राशिंग होता है ठीक और है। इसको मूछ बोला जाता है। मूंछ बोला जाता ये भी खचे है, कई किस्म में, छोटा मोटा बड़ा। ये बेलचा कह सकते हैं आप इसको। ठीक हाँ, है। शिलब कहते हैं इसको, भी शिलब कह सकते हैं आप। ये सारी चीजें वो ठीक। खेती बाड़ी वगैरह या खेती उसमें बाड़ी इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया। चलें सर, और ये क्या ये चीजें हल है हैं? सर लकड़ी का। अच्छा, ये खेती हल बाड़ी है। का जो हल है जी, यहाँ के अच्छा, पीछे ये लगा हल है हुआ सारा। तो ये पूरा लकड़ी का एक हल है सर। ठीक है। और ये सर क्या है? ये सारी चीजें ये वो गाय के साथ, अच्छा, वो गाय के जो साथ के साथ बांधने के लिए, गाय इसके का साथ पूरा। इसके ही औजार हैं। उसका इजार है। थोड़ा सा पीछे जाएंगे ना, वो पूरा आ जाएगा। आगे अच्छा, ये तो ठीक है। ये वो हमारे वो बैल जो होते हैं उसके पीछे लगा के हल लगाने के लिए, और ये ऊपर दोनों बैलों को वो काबू करने। अच्छा, ये पुराने दौर के पुराने सारे। दौर के पूरा लकड़ी का है। ये रोप भी। ये रस्सी ये जो है, ये याक ये के बाल अब आज के दौर के रस्सी हैं, ये पुराने हैं, उसी के ये- खाल से बनते ये थे, गाय खाल के से बने हुए, मतलब हाँ। प्योर चमड़े के। प्योर चमड़े के। ये ठीक हो गया। ये रस्सी भी याक के बाल की बनी हुई अच्छा, है। याक धागे के नहीं बाल है, की। याक के ठीक। बाल है सारे ये जी। ठीक हो गया, सही।